हाय सो आज हम धर्मकोट में विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी इजराइल ऑफ इंडिया। हमने काफ़ी सुना है इस प्लेस के बारे में विच इज़ नोन फॉर इट्स breathtaking व्यू. द व्यूज here are so honestly unreal. Everywhere you look it's just mountains and peace. This place is also very famous for its cute cafes. We also explored McLeodganj here and tried the local food. Then we found some really pretty hidden spots, and this is going to be part 1 because there's actually a lot to explore here. So yeah, let's start exploring. So we have reached Dharamshala and now currently we are sitting in the cafeteria because हम लोग यहाँ अराउंड 9:30 पहुँच गए थे. 9:30 हम धर्मकोट पहुँचे थे. धर्मशाला हम लोग पहुँच गए थे 8:30 AM. चेक इन टाइम इज़ 1 PM, बट हमने अर्ली चेक इन लेने के लिए आए तो उन्होंने हमें बोला कि हम 10 बजे तक आपको दे सकते हैं. तब तक we are थैंक यू chilling पैक in their धर्मकोट. cafeteria. So this is a little glimpse of our stay in Dharamkot called Pack, and honestly यहाँ stay करना was one of the best decisions of our trip. The stay was super comfortable, people were really nice and the whole place had such a chill vibe. So overall we had a really good experience here. We have stayed in so many 5-star hotels, but nothing is compared to this. This is a 7 This star is view. a 7-star. Oh my God, what a view! खुशी देख लड़के की. पहाड़ी लड़के. How are you feeling? तेरे पहाड़. I so wanted to see mountains. इतने टाइम से मुझे एस्केप चाहिए था ये वाला यार. Okay, so this was a cute little room tour. काफी aesthetic है and I quite love it. You can literally see clouds from here. कितने ऊंचाई पे हम लोग? यार 6,890 feet above the sea level right now. I can literally see clouds from here. Yes. इस eye level पे. And I can't tell you, I'm so happy to be here. Seriously, it's just our day 1 and we already are feeling so good. आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ. About this hostel, हमारा प्लान नहीं था एक्चुअली. हम वही रेगुलर होटल्स करवाने वाले थे, बट दिस टाइम वी वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू. हम सोचा अब जा रहे हैं तो प्रॉपर वहाँ की फीलिंग लेते हैं जैसे लोग हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं. तो उसके कंपेयर में दिस इज़ वेरी क्यूट Very cute. एंड इट कॉस्ट अस अराउंड 2,800 for one night. yes. So it's quite affordable, obviously. This cute little room. and it's worth it. 100% बहुत worth it. अफोर्डेबल हो गया एक्चुअली उसके Yes. हिसाब से. तो बहुत ज़्यादा क्यूट है ये रूम एंड आई रियली लव इट. एंड द व्यू इवन अ 5-star प्रॉपर्टी कांट गिव यू दिस. अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता था. नीचे एक Yeah. फायरप्लेस बना हुआ है. लोग सारे हॉस्टल के यहाँ पे हैं. सो एक कॉमन एरिया भी है जहाँ सारे लोग सोशलाइज हो सकते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं बैठ के. इस टाइम बारिश की वजह से कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे. नीचे फायरप्लेस भी पूरी गीली पड़ी है. जाएंगे शाम में, देखते हैं कैसा है. We were already so excited for the view और थोड़ी देर बाद जैसे ही हम बाहर आए the clouds had literally come down right in front of our balcony as you can see. पूरा place fog से cover हो गया था. It looked absolutely magical. After that हमें काफ़ी भूख लग रही थी and just a 2-minute walk from our hostel we found this super cute little cafe run by a really sweet lady. We just had Maggie and omelette there and honestly it felt so comforting that we ended up visiting that place almost every single day during our stay in Dharamkot. उसके बाद हम निकल गए मैक्लॉडगंज एक्सप्लोर करने बिकॉज ऑनेस्टली हमारे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए था भी नहीं एज इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली एंड निखिल एंड आई हैड टू डू सम शॉपिंग टू सिंस वी वर कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द वेदर देयर. हमें अर्जेंटली जैकेट्स और कुछ वार्म क्लोथ्स परचेस करने थे एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस वी इवन स्पॉटेड द लेजेंड दीपक कलाल देयर. बट जैसे ही हमारी शॉपिंग खत्म हुई द रेन स्टार्टेड अगेन एंड इट वॉज रेनिंग सो हैवीली एज यू कैन सी द क्लाउड्स वर लिटरली कमिंग डाउन वंस अगेन. द होल व्यू लुक्ड एब्सोल्युटली ड्रीमी. That's when we found this beautiful cozy cafe nearby, and honestly one thing that's truly special about Dharamkot is its cafes. No matter which cafe you visit, you get the most stunning views ever. So we were enjoying our chai in our hostel's cafeteria when this cutie came to us. At first, honestly, I was a little scared, but he turned out to be extremely friendly and super adorable. It's 10:36 PM right now. अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ डिनर के लिए
एंड वी आर गोइंग टू EDM कैफे। यस, मैंने सुना है कि आज वहाँ पार्टी भी होने वाली है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ वाइब चेक। आज कोई Yes. पार्टी वार्टी नहीं करने वाले, बहुत थके हुए हैं यार। वी आर गोइंग टू द EDM हॉस्टल फॉर डिनर बिकॉज हमारे हॉस्टल पे 9:30 बजे किचन बंद हो गया था एंड वी वर नॉट एट ऑल हंग्री। एंड ऑल्सो मोस्टली कैफे से बंद हो जाते हैं अराउंड 10 PM। तो EDM ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 11 साढ़े 11 तक फूड मिल जाएगा। Oh my god, I'm scared. I'm sorry, Careful, it's just the road. Careful. The roads are too dangerous here. See हम लोग कैसे जा रहे हैं। Kudos to us. Oh my god. Oh my god, look at this place. वाह, Okay, worth it. पीछे दिखाना जहाँ से हम आए। Absolutely worth it. ये देखो हम यहाँ से This was where आए। we came from. हमारा हॉस्टल है वहाँ पे पैक, वहाँ से इतना 2 मिनट का dark डिस्टेंस था। है। Oh my god. पैक से सिर्फ 2 मिनट का वॉक है। Okay. दिस इज EDM हॉस्टल। Nice. वाह, इतनी रात में लुक सो लाइवली। Nikhil, this place looks so good. अनएक्सपेक्टेडली। This is so trippy. Nice. Crazy bro, crazy. क्या सीन है अंदर? पेस्ट्री जो मैंने एक्चुअली कल मंगवाई थी ताकि रात को हम थोड़ा सा काट सके, बट हम EDM से काफ़ी लेट आए, सो बोल नहीं सकते थे, सब लोग सो गए थे। सो अभी हम ये काट रहे हैं। हम सॉरी बर्थडे कल बाबू ही को स्टार्ट हो ज़्यादा गया नहीं था। कर पाई। हम लोग वहाँ EDM हॉस्टल में थे, वहीं बर्थडे स्टार्ट हो गया। तुमको वाइब Yes. करते देखते ही मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया था। ती छोटू सा पहले स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट काटे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय हैप्पी और एक मेरी बेबी। अब हम जा रहे हैं कोई कैफे एक्सप्लोर करने यहाँ। ये हमारा हॉस्टल है पैक, और ये उसके सामने स्टेयरकेस है। ये वीराना। ऐसा है, मतलब आप कहीं भी चलते जाओ, हर जगह आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा खाने के लिए, देखने के लिए। नाइस। चार्लीज प्लेस। Think about your day and ask you how it is. Why are you being cruel when What better could I expect from a birthday? This is what I love about the mountain. इवन नीचे कनेक्ट आपको यहाँ मिलता है ना, ये जो फीलिंग है आपको, हल्की सी बारिश चालू है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, इतना प्यारा सा कैफे बना हुआ है, ये अनमैचेबल है, अनडिस्क्राइबेबल है। मैं बता नहीं सकता हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ आप लोग तो शायद ही मैं कैमरा के साथ तो दिखा सके, फील करवा सके, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज आई विल डू माय बेस्ट। मुझे पसंद है ऐसे कॉटेजेस, छोटे कॉटेजेस वाले कैफे। कितना कोजी लग रहा है सब कुछ यार, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ। कंबल ठंडी पड़ रही है तो, एंड दिस व्यू माय गॉड, एंड ऑफ कोर्स द लव ऑफ माय लाइफ। और क्या चाहिए एक लड़की को यार। सो दिस इज अ क्विक फिट चेक ऑफ व्हाट वी आर वेयरिंग टुडे। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम वाटरफॉल तक वॉक करके जाएंगे, यस, which is quite tough for me, but I love challenges, so मुझे ट्राई भी करना था। आई लव चैलेंजेस। वाओ इसमें थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, इसमें थोड़ा मेरा वजन भी कम हो जाएगा इसी बहाने। तो हम जा रहे हैं, विच इज़ लाइक 30 मिनट्स का वॉक है यहाँ से। और उसके बाद अगर हमें शिवा कैफे जाना है तो वहाँ पे भी हमें ट्रैक Cafe. करके जाना पड़ेगा ऊपर तक, वो भी कुछ 10-15 मिनट्स का ट्रैक रहेंगे मेरे ख्याल से। सो ओवरऑल काफ़ी फन रहने वाला है ये। और ये मुझे वॉकिंग इस गांव में करनी थी मुझे, कहीं कि Yes. हम पैदल जाएं, गांव से अंदर एक्सप्लोर करें इंटीरियर में। कैब में आप कितना ही देख लूँगे, राइट? कैब तो मेन रूट से ले जाता था आपको, ये अंदर हमारे हॉस्टल से बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, स्टेयरकेस, हॉस्टल से निकले के सामने स्टेयरकेस है, वहाँ से आप उतरते जाओ और कैफे पहुँच जाओगे। टू व्हीलर में हमने सोचा था, बट रास्ते इतने स्टीप है कि हमको डर भी लग रहा था। बट बारिश है यार। हाँ, और ऐसा जो मज़ा आ रहा है ये अलग ही है।
हमें सजेस्ट भी किया एक दो लोगों ने कि स्कूटी का मत सोचो फ़िलहाल, किसी दिन मौसम क्लियर रहा तो उस दिन करवा लेंगे। अनेक ने तो कहा कि अगर तुमको सीरियसली इसको एक्सपीरियंस करना है तो पैदल ही जाओ। वो खुद सुबह होके आया था, हमारे हॉस्टल का ही था एक बंदा, उसने कहा कि तुम अगर पैदल जाओगे तुम्हारा अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। वाओ, लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? यार कितना सुंदर है। कम बेब, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? बात करते करते हमसे एक गलती हो गई, हमें गलत रूट पे आ गए। निखिल मैप्स पे देख रहा है, शायद वहाँ से था रास्ता, हम थोड़ा इधर आ गए। मिला? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। 2 दिन से बारिश की वजह से फंस चुके हम लोग, कहीं जा नहीं पा रहे थे। ओके, सो अभी हमें समझ में आ गया कहाँ से रास्ता लेना है। वहाँ से एक्चुअली स्ट्रेट जाना था, बट हम गलती से राइट आ गए थे। धुआं दिख रहे हो कैसे निकल रहा है? इतनी धूप होने के बाद भी। शाम के 5 बजे हैं। यस, अभी शाम के 5 हो रहे हैं। Boy, you look like a cowboy today. Thank you. Howdy. Hippie cowboy. Howdy. Howdy. Nikhil is again and again making sure मैं गिर तो नहीं रही हूँ। बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है तो मेरा हाथ पकड़ना तो नहीं पड़ जाए। मेरा हाथ पकड़ के रास्ते चल। ये देखो रास्ते कैसे। The best thing about this place is हर जगह आपको छोटे छोटे क्यूट कैफेज दिख रहे हैं। So cozy and aesthetic. Nice. Little problems we कैसा पकड़ could के solve. कितने क्यूट लग रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? I know you got one. She's showing me a finger. There's no She's giving me a finger literally. lights calling. हाँ, ये नहीं दिख रहा। And we're driving to Bye cutie, bye. Bye. कीर्ति bye bye. This is way to Bhaksu, मतलब we are on the right track. This feels like time's making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. और यहाँ की एक और चीज़ जो बहुत फेमस है, दैट इज़ द होल योगा एंड हीलिंग कल्चर। हर जगह आपको छोटे स्टूडियोज, क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशंस देखने मिल जाएंगे जहाँ रेकी, हीलिंग सेशंस, मेडिटेशंस एंड योगा जैसी चीज़ें होती हैं। ऑनेस्टली द एंटायर वाइब हियर फील्स सो पीसफुल एंड कामिंग। सो एज यू नो, धर्मकोट में मोस्टली इजराइलीज रहते हैं। आई थिंक वो लोग यहाँ पे मोस्टली इसलिए आते हैं कि यू नो फॉर देयर पीस, योगा, हीलिंग्स जो भी। उनका एक कंपलसरी ट्रेनिंग पीरियड रहता है इन द मिलिट्री, इजरायली मिलिट्री में उनका लाइक कोरियंस। यस, तो 3 से 4 साल का उनका वो मिलिट्री पीरियड रहता है। वो होने के बाद वो स्पेशली सारे लोग बाहर रिलैक्स करने निकलते हैं, कुछ महीनों के लिए, मे भी कुछ साल के लिए, कोई परमानेंटली चले जाते हैं बाहर। तो इंडिया में धर्मकोट इज द यस, प्लेस। कसोल एंड धर्मकोट, दीज आर 2 प्लेसेस। यहाँ की हिस्ट्री टिबेटियन कल्चर से भी जुड़ी हुई है। जब दलाई लामा ने टिबेट छोड़ा था तो वो इंडिया में जब आए थे तो इस प्लेस में सेटल हुए थे आके। तो यहाँ काफ़ी सारे उनके फॉलोअर्स भी मतलब उस टाइम के आज भी हैं, और उनकी भी कम्युनिटी है यहाँ पे, वो रहती है, उनकी शॉप्स है, वो लोग रहते हैं परमानेंटली, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो। सो एक मिक्स कल्चर हमको देखने मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू। सो यम्मी, बहुत अलग ही टेस्ट है इसका। हाउ इज इट? रियली गुड। टोल्ड यू, बहुत अलग ही टेक्सचर है इसका, क्रीमी क्रीमी। If we tried it, we could. रास्ते में हमें शॉप मिली है और ये मैंने सिद्धू की बहुत अच्छी रिव्यू सुनी है, इसकी ट्राई करके देखते हैं। सो वी आर ट्राइंग दिस फेमस सिद्धू जो हिमाचल प्रदेश का रहता है, एंड निखिल ऑलरेडी लाइक्स इट। ये कुछ तो चावल के आटे का है, इसमें स्टफिंग है। लेट्स सी मुझे कैसे लगता है। कम ट्राई दिस। यू डू ना, आई डू। अच्छा, मेरा दूसरा रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर लूँगा, शायद मुझे ना पसंद आए। बट इट्स गुड।
Rated on a scale of 10. 8 8. शेफ who's turn? है ना? चेंज ऑफ प्लान्स बाय द वे, बाक्सू से आगे आके हम लोग ने मैक्लोडगंज के लिए कैब ले ली थी और पहले हम जाने वाले थे शिवा कैफ़े, बट वो 7 बजे बंद हो जाता है हमें पता चला, तो हमने करवा लिए कैब वहाँ से जाने के लिए मैक्लोडगंज से हमें कुछ लेना था, तो हमने वो सामान लिया और अभी हम जा रहे हैं सनसेट कैफ़े जो कि पड़ता है गलू में, और गलू में एक गलू टेम्पल है, गलू टेम्पल तक ही कैब जाती है, उन्होंने वहाँ हमें छोड़ दिया और वहाँ से आगे भी हमें 10 मिनट का ट्रैक करके जाना है। वही मैं तुमको दिखाने वाला था कौन सा अगर यार, ये मैंने सुना पर नाम भूल गया हूँ। ये ना एडिबल होते हैं, लोग इसमें से कुछ बना के खाते भी हैं और बहुत फेमस है यहाँ पे, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। ये सनडाउनर्स कैफे है। क्या मैं सनसेट कैफे भी है यहाँ पे कोई? अच्छा, वो आगे है। एवरी टाइम वी लैंड इनटू सम अदर स्पॉट। सोचते हैं मुझे पहुंच, बट अच्छी प्लेस है यार, कितनी सुंदर प्लेस है यार, नो डाउट। यहाँ से बैठ के सनसेट का क्या मजा आता था। देखा क्या हमने सनसेट? यहाँ से थोड़ा और आता है ठीक। हेलो। They have so many huskies here. इससे तो मेरी इतनी फटी पहले। ये कॉफ़ी इतनी फुल दी है कि मुझे ऐसे पीनी पड़ रही है। Meet this cute husky. ये आया मेरे पास सीधा झपटा मारा, मैं तो डर गई, बट बहुत क्यूट है यार, वेरी फ्रेंडली। ये पहाड़ी मैगियाँ यार बेस्ट मैगी। ख़त्म ही नहीं होगी, आप आओगे तो। जब से हम लोग आए मैक्लोडगंज गए, धर्मशाला गए, धर्मकोट गए, धर्मशाला नहीं गए सॉरी, बट ये जो यहाँ पे पहाड़ पे आके ये कैफ़े, इसके पहले जो कैफ़े था, अनबीटेबल, बेस्ट मैगी बनाई। एक्चुअली सब अच्छे बना, ऑमलेट भी बहुत जोरदार बनाया यार, बेस्ट। थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया। ये देखो कितने अंधेरा है और हम अकेले हैं। होप यस, थैंकफुल यहाँ पे स्टेप्स है। पूरे इस जंगल में हम अकेले थे, आ गए, बहुत राहत की सांस मिली हमको। अकेले मतलब हम लास्ट एग्जिट करने वाले थे। Day 3 was even crazier. हमने literally 2 किलोमीटर ट्रैक किया just for this Insta famous cafe with the most unreal view ever. उसके बाद पूरा टाउन वॉक करके एक्सप्लोर किया, saw the most beautiful mountain views and peaceful little corners everywhere. Then we visited the famous Baksu waterfall and ended the day at this magical church. See you all in part 2.